Okay. Always remember this revision is for you, not for. तो अगर कॉन्सेप्ट समझाते समझाते अगर कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो गया हो, you all were absent, you all did not get it at that time, you all can make the full utilization of this revision session. Okay, I'm starting with the first section. Negotiable Instruments Act are of three types. Negotiable instruments covered under this act can be of three types. What are the three types of NIs covered under the act? Bolo. Promissory note, bills of exchange and a check. जब मैं promissory note की बात करती हूं, this promise should be an unconditional promise. जब कभी भी मैं promise की बात करती हूं, the promise that I am giving should be an unconditional promise. It should be to pay a certain sum of money only. It should be stamped and it should be signed by the maker of the promissory note. यही promissory note should be made in writing. An oral promise made is not allowed under the act. And along with that, promise देना जरूरी है. Mere acknowledgement of a debt is not allowed. एक बात मुझे बताओ, how many parties are there to a promissory note? There are two parties. पहला maker है और दूसरा payee है. जो primarily liable होता है वो होता है the maker, और जिसको पैसा मिलने वाला होता है that is the payee. तो देखो promissory note की डेफिनेशन देखते हैं. देखिए, a promissory note is an instrument in writing. It is an instrument in writing. It is an instrument in writing. अगर मैं oral promise दे रही हूं, क्या इसको हम promissory note कह सकते हैं? अरे हाँ या ना में तो जवाब दो. Containing an unconditional undertaking. आपने जो promise किया है, क्या वो conditional हुआ तो चलेगा? बोलो ना. Your promise should be unconditional in nature. So say for example, if I am making a promise to pay rupees 10,000 to you, if it rains tomorrow, क्या ये promissory note valid होगा? No. Why? Because the promissory note is a conditional promissory note. Promissory note को कौन sign करता है? और किसको payment दिया जा रहा है? तो मतलब promissory note में कितने parties है? प्राइमरीली लायबल कौन है और किसको पैसा मिल रहा है? क्या पैसे मिलने का ही प्रॉमिस होना जरूरी है टू पे, और ये पैसे क्या सर्टन होना जरूरी है? सो द प्रॉमिस शुड बी टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली. प्रॉमिसरी नोट क्या स्टैम्प होना जरूरी होता है? हाँ या ना? वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? कौन से तीन पार्टीज? ड्रॉवर, ड्रॉई, पे. वापस से कौन कौन? ड्रॉवर. कौन ऑर्डर दे रहा है? किसे ऑर्डर दिया जा रहा है और किसको पेमेंट मिलने वाला है? कौन बिल को एक्सेप्ट करता है? Once he is accepting the bill, he will be known as the acceptor. सोच के बोलना. बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? ड्रॉई. एंड सेकेंडरी एंड अनकंडीशनल ड्रॉवर. तो सबसे पहले पेई विल कम टू द ड्रॉई. ड्रॉई ने अगर पेमेंट नहीं दिया तो ही हम लोग किसके पास जाएंगे? ड्रॉवर के पास जाएंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या स्टैम्प की जरूरत होती है? एंड इट शुड बी साइंड बाय द मेकर. मेकर इज द ड्रॉवर. ऑर्डर अनकंडीशनल होना जरूरी है एंड द ऑर्डर शुड बी टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली. यस और नो गाइस? वेरी गुड. In case of a check, we usually say a check is a kind of a bill of exchange, but the order is given to a banker. So check के केस में ड्रॉई will always be a आप ड्रॉवर हो, आपकी बैंकर इज द ड्रॉई बैंक, और जिसके फेवर में चेक इशू किया गया उसको कहते हैं एज द पे. चेक के केस में कौन साइन करता है?
ड्रॉवर, वेरी गुड. अच्छा, चेक के केस में लाइबिलिटी प्राइमरी किसकी होती है? ड्रॉवर की. क्या ड्रॉई हमेशा एक बैंकर ही रहेगा? चेक के केस में स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं. Stamping is only required in promissory note and in case of a bill of exchange. A check which was originally formed in the electronic form is known as a electronic check. Electronic check में signature actual होती है या digital होती है? क्या पेपर यूज होता है? अच्छा, बट ट्रंकेटेड चेक में क्या पेपर यूज होता है? सिग्नेचर क्या फिजिकली की जाती है? And in the clearing process, the check is converted into a scanned image, which is known as a truncated check. Electronic check was born in the E-form and it dies in the E-form. Truncated check is originally made in the paper, physical format, is later on converted into a scanned image. चेक में क्या आप क्रॉसिंग कर सकते हो? अ चेक कैन ईदर बी एन ओपन चेक और अ क्रॉस चेक. ओपन चेक का पेमेंट कैन बी कलेक्टेड अक्रॉस द काउंटर. ओपन चेक ना दो टाइप के होते हैं, एक बेरर होता है और एक ऑर्डर होता है. बेरर चेक में आप पेई का नाम नहीं लिखते हो, बट ऑर्डर चेक में आप पेई का नाम स्पेसिफाई करते हो. अगर आपका चेक ओपन चेक है, मींस इट इज नॉट अ क्रॉस चेक. आप ड्रॉई बैंक के काउंटर पे जा सकते हो, कैश काउंटर पे, और वहीं से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो. बट फॉर सेफ्टी पर्पसेस, इफ यू विश टू, यू कैन क्रॉस अ चेक. यू कैन क्रॉस चेक का पेमेंट अक्रॉस द काउंटर कलेक्ट नहीं हो सकता है. क्रॉस चेक का पेमेंट अगर आपको कलेक्ट करना है, इट हैज टू बी रूटेड ओनली थ्रू अ बैंकर, ओनली थ्रू अ बैंकर. एंड दिस क्रॉसिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जनरल क्रॉसिंग, स्पेसिफिक क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग जब कभी भी आप करते हो, उसका इफेक्ट क्या होता है? नाउ द पेमेंट ऑफ द चेक कैन नॉट बी कलेक्टेड अक्रॉस द काउंटर. It has to be collected through a banker, and this banker can be any banker. But if you have specially crossed a check, specially crossed check ka payment cannot be collected across the counter. It has to be collected through a banker, and this banker has to be only that banker in whose name you have specially crossed the check. तो क्रॉसिंग के कितने टाइप्स होते हैं? दो. कौन से दो? स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग. इसी क्रॉसिंग में आप रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हो. कौन से रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हो? अकाउंट पे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. अकाउंट पे क्रॉस्ड चेक अगर आपका है, कौन सा है? अकाउंट पे क्रॉस्ड चेक. Now banker is supposed to collect the proceeds of the check on behalf of the holder whose name appears on the face of the check. तो ओरिजिनली जिसके नाम पे चेक ड्रॉ किया गया था, उसी के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट किया जाएगा. अकाउंट पेई के लिए ही आप पेमेंट कलेक्ट करने वाले हो. बट इफ योर चेक has the restriction of not negotiable. पहला एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना में जवाब दो. Not negotiable marked checks can be transferred. Yes or no? तो फिर not negotiable ऐसा नाम क्यों दिया है? Negotiable instruments का एक मेन कैरेक्टर होता है, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स का, जिसमें आप देखोगे, आगे हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट जैसे इंस्ट्रूमेंट एचडीसी के हाथों में आता है, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट, दैट डिफेक्ट विल बिकम क्लीन एंड क्लियर एंड द पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट. ये सबसे मेन कैरेक्टर जो हमने इस एक्ट के तहत एनआई को दिया है,
वो नॉट नेगोशिएबल मार्क्ड चेक्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कल जाके अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है और आपने ये इंस्ट्रूमेंट किसी को गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन विदाउट नेग्लिजेंस बिफोर मैच्योरिटी दिया भी है, तो भी वो बंदे को एचडीसी का टाइटल नहीं मिलेगा। उसका टाइटल वैसा ही रहेगा जैसा प्रीवियस होल्डर का था। वो क्लीन एंड क्लियर डिफेक्ट्स का नहीं होता है। कब? अगर आपका चेक मार्क्ड है नॉट नेगोशिएबल। अगर आपका चेक मार्क्ड है नॉट, very good, but not negotiable checks can still be transferred. अरे हाँ या ना? Very good. Who can cross a check? Either the drawer or the holder or even the banker. आवाज थोड़ी सी कम कर देना, क्लासरूम के पीछे से ये आ रहा है। कौन सी? नहीं रुक जा अभी, बाद में मैं दे दूंगी उसको। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर। सुनो ना मेरी बात। विच इज द पेइंग बैंकर? ड्रॉवर का बैंकर इज द पेइंग बैंकर, मतलब द ड्रॉई बैंक। उसको हम कब प्रोटेक्ट करेंगे? जब उसने पेमेंट ड्यू कोर्स में दिया है, वी विल प्रोटेक्ट दैट बैंकर। आस्था बातें बंद करो। तो सुनो, इफ इट इज अ बेरर चेक, ओपन बेरर चेक, the payment was made across the counter to the bearer. If it was an open check, which is an order check, the payment was made across the counter to the person in whose name it was made. If it is a cross check, payment was not made across the counter, but payment was made through a banker. And if it was a specially crossed check, the payment was made not across the counter, but was routed through the banker in whose name it was specially crossed. ये सारी चीजें अगर पेइंग बैंकर ध्यान में रखता है, मतलब पेमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, यू विल प्रोटेक्ट दैट बैंकर। कल जाके कोई भी एंडोर्समेंट्स फॉर्ज्ड है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट बैंकर। ये पेइंग बैंकर कुछ चीजें देखता है, जैसे कि क्या? चेक जो है उसकी डेट क्या है, बिकॉज द चेक शुड नॉट बी आउटडेटेड, इट शुड नॉट बी पोस्ट डेटेड, इट शुड नॉट बी अनडेटेड। तो डेट बराबर है या नहीं, और वैलिडिटी के विद इन चेक को प्रेजेंट किया है या नहीं, वो चीज देखी जाएगी। फिर वो देखेगा ड्रॉवर की सिग्नेचर स्पेसिमेन से मैच हो रही है या नहीं हो रही है, अकाउंट ऑपरेशन में है या नहीं है, वो क्लोज तो नहीं हुआ है अकाउंट, ये चीजों को देखा जाएगा। और अगर सिग्नेचर मैच हो जाती है ड्रॉवर की विद द स्पेसिमेन और पेमेंट ड्यू कोर्स में करता है, ये पेइंग बैंकर प्रोटेक्टेड रहेगा। कल जाके कुछ भी एंडोर्समेंट में डिफेक्ट आता है, फॉर्जरी आती है, तो आप ये पेइंग बैंकर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। वैसे ही जो कलेक्टिंग बैंकर है ना, मतलब होल्डर की बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर मतलब होल्डर की बैंकर, उसको आप कब प्रोटेक्ट करोगे? जब उसने अपने कस्टमर के बिहाफ पे इस चेक का पैसा कलेक्ट किया है इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। मुझे बताओ अगेन, व्हेन विल द कलेक्टिंग बैंकर बी प्रोटेक्टेड? व्हेन ही कलेक्टेड द पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। You will not be able to file a case against the collecting banker if there was any defect on the check. Okay? Acceptor and acceptor for honor. Acceptance का concept एक ही negotiable instrument में आता है, and that instrument is a bill of exchange. Who accepts the bill of exchange? Drawer, drawee के पे? Drawee. Once the drawee accepts the bill, he will be called as the acceptor. Acceptor की liability कैसी होती है? Primary and unconditional. तो सबसे पहले होल्डर एक्सेप्टर के पास ही आएगा to collect the payment. Who is an acceptor for honor? अगर ड्रॉई ने इस बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया and somebody else is accepting the bill for the honor of the drawer,
such a person will be called as an acceptor for honor. होल्डर पहले एक्सेप्टर के पास जाएगा, ओरिजिनल एक्सेप्टर के पास, जो ड्रॉई है एक्चुअली पेमेंट डिमांड करने के लिए. अगर उसने पेमेंट तब भी नहीं दिया, तब आप एक्सेप्टर फॉर ऑनर के पास पेमेंट डिमांड कर सकते हो. एंड देन एक्सेप्टर फॉर ऑनर कैन ट्रीट एनी प्रायर पार्टी लायबल फॉर द पेमेंट दैट ही मेड ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर. वैसे ही जब ड्रॉई के बिहाफ पे कोई और पेमेंट करता है, ड्रॉई मतलब एक्सेप्टर के बिहाफ पे कोई और पेमेंट करता है, he will be known as the person who has done the payment for the honor of the acceptor, for the payment of the acceptor. Later on, this person can demand the payment from any prior party on the negotiable instrument. Holder and holder in due course. कब माना जाएगा that you are an holder? 4 conditions बताइए. When you have the possession on the negotiable instrument, you are entitled to the possession. You are entitled to the possession in your own name, and you have the right to recover the amount on the negotiable instrument. एक आवाज में चारों भी पॉइंट्स बोल सकते हो क्या आप लोग? When will you be considered as a holder according to section 8 of the NI Act? Bolo. When you are having the possession of the negotiable instrument, you are entitled to the possession. You are entitled to the possession in your own, and you are entitled to recover the amount on the negotiable instrument. अच्छा, when will you be considered as a holder in due course? बोलो. पहले ये 4 conditions पूरे हो गए होल्डर के. You accepted the instrument in good faith without negligence before maturity and for consideration. Then you will be considered as a holder in due. वापस से मुझे बताओ, when will you be considered as an HDC? When you are having the possession. You are entitled to the possession. You are entitled to the possession in your own name. You are entitled to recover the amount on the negotiable instrument. You accepted the instrument in good faith, without negligence, before maturity. जैसे ही इंस्ट्रूमेंट आपके हाथों में आएगा, सारे के सारे पाप धुल जाए, and the instrument will become clean and clear of every defect. कोई भी डिफेक्ट अगर इंस्ट्रूमेंट में है भी तो भी वो क्लियर हो जाएगा, and you will be entitled to recover the amount on the negotiable instrument. Section number 9 talks about holder in due course. अब आपका एक बार टाइटल क्लियर है, तो इसके बाद भी कोई भी अगर होल्डर होगा उसका भी टाइटल क्लियर ही माना जाएगा. हाँ या ना? What do you mean by an inchoate instrument? बोले. Incomplete instrument. So if an instrument is either partially blank or completely blank, it is known as an inchoate instrument. So basically there is just the stamp and the signature. The instrument is either fully blank or it is partially blank. उसको क्या कहते हैं? Inchoate instrument. Inchoate instrument में होल्डर को प्राइमा फेसी राइट मिल जाता है टू कंप्लीट दिस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. टू कंप्लीट दिस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. Now you will be entitled to recover only that much amount as you are entitled to receive. But a holder in due course can recover the complete amount on the negotiable instrument, but not an amount exceeding the value of the stamp. Negotiable instruments can be classified into various types. सबसे पहली बात तो पेमेंट किसको दिया जाएगा उसके हिसाब से द इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स.
An instrument can either be a bearer instrument or a order instrument. Bearer instrument में पेई का नाम लिखा नहीं होता है, order instrument में पेई का नाम लिखा होता है. Inland and foreign. Inland instrument is an instrument which is made in India and payable in India. जो instruments inland नहीं है वो क्या है? Foreign instruments. Inchoate instrument हमारा already हो चुका है. Ambiguous instrument is an instrument wherein you cannot make whether the instrument is a promissory note or a bill of exchange. कुछ याद है आपको? अब ऐसे केस में होल्डर इस इंस्ट्रूमेंट को जो भी ट्रीट करता है उसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. लेटर ऑन ही विल नॉट बी एबल टू चेंज हिज स्टैंड. एम्बिगुअस मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर. वी आर नॉट एबल टू मेक आउट कि इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है या ये इंस्ट्रूमेंट है एक बिल ऑफ एक्सचेंज. कैन एन इंस्ट्रूमेंट बी अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट? कैन एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट? सो अगर टाइम मेंशन नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट को माना जाएगा एज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. टाइम इंस्ट्रूमेंट में याद रखना देयर आर 3 days ऑफ ग्रेस गिवन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. डिमांड इंस्ट्रूमेंट को डेज ऑफ ग्रेस नहीं दिए जाते हैं, वो तो पेमेंट दिया जाएगा ऑन डिमांड. डिमांड किया पैसे दो. ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, दैट टू इफ इट इज पेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट and it's a bill of exchange, then you give the 3 days of grace. If your bill is payable after sight, the calculation will begin only after the bill has been accepted. Okay? If the due date, that is the maturity, is falling on a public holiday, which is a national holiday, yes, payment will be collected on the preceding day. But if subsequently that day is declared as a holiday, payment will be made on the succeeding day. Okay. Negotiation मतलब transferability. Transferability of an instrument will depend upon आपका instrument किस type का है. Is it payable to bearer or is it payable to order? Bearer instrument can be transferred by mere delivery, but order instrument can be transferred by delivery as well as endorsement. By delivery as well as endorsement. Endorsement means signing on the instrument, either on the face or on the back, or on an additional sheet of paper attached to it. Additional sheet of paper is known as an allonge. इसी instruction से now you give the other person the right to recover the amount on the negotiable instrument. इसी endorsement के बहुत सारे types है. क्या आप लोग मुझे उसके types बता सकते हो? सबसे पहला endorsement in blank. अच्छा, can endorsement be done orally? It has to be done in writing. And it should be signed by the holder. तो आपका जो राइट था इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे कलेक्ट करने का, वो आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया है. एक बात बताओ ना मुझे, ब्लैंक एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? ब्लैंक एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट विच इज मेड विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी. देखो, जो ट्रांसफर कर रहा है उसे कहते हैं एंडोर्सर, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको कहते हैं एज द एंडोर्सी. यस और नो गाइस? वेरी गुड. केशव, निकिता, गुंजन, संजोत, क्या बात है. किंजल, वेरी गुड. नेक्स्ट, एंडोर्समेंट इन फुल. व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट इन फुल? Name of the endorsee is specified, is known as an endorsement in full.
पार्शियल एंडोर्समेंट में यू आर ओनली ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ऐसा एंडोर्समेंट इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है. यू ईदर ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट इन टोटलिटी और कीप द इंस्ट्रूमेंट विथ यू इन टोटलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट? बोलो. You are restricting the right of further transferability of the negotiable instrument. It is known as a restrictive endorsement. Virtual students, please answer. Vidushi, very good. What is wrong with the others? आपको जवाब देना है. Okay. So whenever you are restricting the right of further transferability of the negotiable instrument, it is known as a restrictive endorsement. कंडीशनल एंडोर्समेंट के 4 टाइप्स है. बता सकते हो कौन से 4 टाइप्स? सैंस रिकॉर्स, कॉन्टेंजेंट एंडोर्समेंट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट एंड सैंस फ्रेज एंडोर्समेंट. सैंस रिकॉर्स मीन्स विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम मी. होल्डर अपनी लायबिलिटी को वेव ऑफ कर दे रहा है. कल जाके अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर भी हुआ, आप ये बंदे के पास पेमेंट कलेक्ट करने के लिए नहीं आ सकते. यू कैन गो टू एनी अदर पार्टी. ओके. कॉन्टिंजेंट एंडोर्समेंट में एंडोर्समेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन. Okay. In case of facultative endorsement, you are waiving off your right to receive the notice of. आपने अपने right को waive off किया है, but फिर भी आप liable हो. मतलब now the holder can come to you even without giving you the notice of dishonor to collect the payment on the negotiable instrument. And sans phrase endorsement में you are relieving yourself from any expenses that are incurred on account of the instrument, mainly because of dishonor. So these were the 4 types of conditional endorsements. फैकल्टेटिव में यू आर वेविंग ऑफ द राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ डिसऑनर. साइंस रिकॉर्ड्स में आप अपनी लायबिलिटी को ही रिलाइव कर रहे हो. सॉरी. हाँ. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव अंडरस्टूड. हाँ. यस. ओके. नेक्स्ट. Okay. Endorsement in blank can also be converted into an endorsement in full. If an endorsement in blank is converted into an endorsement in full, now my dear friends, कल जाके और आपको इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है. ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल होगा बाय डिलीवरी एज वेल एज एंडोर्समेंट. तभी इस इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है. एंडोर्समेंट में एंडोर्सर की सिग्नेचर होना जरूरी है. इट शुड बी इन राइटिंग. ओरल एंडोर्समेंट इज नॉट अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ. और इसी एंडोर्समेंट के वजह से नाउ एंडोर्सी will be entitled to recover the amount on the negotiable instrument. तो पहले जो आपका अधिकार था इस इंस्ट्रूमेंट का पैसा कलेक्ट करने का, अब आपने अपने राइट को एंडोर्सी को ट्रांसफर कर दिया है. हाँ या ना? ये एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 59, जिसमें बताया गया है द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु हैज अक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द डिसऑनर. मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है, उसके बाद आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिला है एंड यू हैड नोटिस अबाउट द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तब ऐसे केस में यू गेट द राइट्स
देयर ऑन ऑफ हिज ट्रांसफर और ओनली, तब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप सभी प्रायर पार्टीज को लायबल ट्रीट नहीं कर सकते हो जिससे आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है उसी से आप पैसे जो है वो क्लेम कर सकते हो। तो देखो ना यहां पे क्या हुआ है, ये एग्जाम्पल 30 पढ़ो, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन ही एक्सेप्टेड इट deposited with the drawer certain goods as collateral security for the payment of the bill। आपको समझा क्या हुआ है? Acceptor of a bill of exchange, when he accepted it, he accepted the bill and he deposited with the drawer certain goods as a collateral। collateral मतलब additional security। बिल तो उसने एक्सेप्ट किया है, उसके साथ साथ उसने ड्रॉवर को कुछ गुड्स भी दिए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कि कल जाके अगर मैं बिल को डिसऑनर करता हूं आप गुड्स को बेच के अपने ड्यूज रिकवर कर सकते हो। विद द पावर टू द ड्रॉवर टू सेल द गुड्स एंड अप्लाई द प्रोसीडिंग्स इन डिस्चार्ज ऑफ द बिल इफ इट वॉज नॉट पेड एट मैच्योरिटी। सो बेसिकली बिल को तो एक्सेप्ट किया गया है, बट अगर बिल डिसऑनर होता है ड्यू टू नॉन पेमेंट, द ड्रॉवर कैन सेल द गुड्स एंड कैन रिकवर द ड्यूज हिज ड्यूज। द बिल नॉट हैविंग बीन पेड एट मैच्योरिटी, द ड्रॉवर सोल्ड द गुड्स एंड रिटेन्ड द प्रोसीड्स बट एंडोर्स द बिल टू ए। तो ड्यू डेट पे हम एक्सेप्टर के पास गए, एक्सेप्टर ने बिल को डिसऑनर किया, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है हमने गुड्स को बेच दिए और प्रोसीड्स अपने पास रख लिए। अब ये डिसऑनर्ड बिल ड्रॉवर जो है किसी और को एंडोर्स कर रहा है, मिस्टर ए को। ए's टाइटल इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑब्जेक्शन एज द ड्रॉवर्स टाइटल। अब ए जो है इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट जो है वो किससे कलेक्ट कर पाएगा? उस पार्टी से कलेक्ट कर पाएगा जिसने उसको ये इंस्ट्रूमेंट दिया है, बिकॉज द बिल इज ऑलरेडी बीन डिसऑनर्ड। और डिसऑनर के बाद ए को ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है एंड ए वाज अवेयर अबाउट द डिसऑनर। तो अगर उसको पेमेंट कलेक्ट भी करना है ही विल बी एबल टू कलेक्ट इट फ्रॉम हिज ट्रांसफरर जिसने उसको ये इंस्ट्रूमेंट दिया है। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप कब तक ट्रांसफर कर सकते हो? जब तक वो अलाइव है, है ना? सो टिल द टाइम द पेमेंट इज नॉट मेड यू कैन ट्रांसफर इट टिल द टाइम यू विश टू। एक बार पेमेंट दे दिया इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज, इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज। नेगोशिएशन बैक, जो कोई ओरिजिनल पार्टी थी उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होते 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 वापस आ गया। अगर जो ओरिजिनली लायबल पार्टी थी उसी के पास इंस्ट्रूमेंट वापस आ जाता है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। बट अगर वो पार्टी के पास इंस्ट्रूमेंट आया है जो ओरिजिनली लायबल नहीं थी तो ऐसे केस में इंटरमीडिएटरी पार्टीज डिस्चार्ज होती है। याद करो ऐसा वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या डिस्चार्ज हुआ है? इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया है। बट केस 2 ओनली द इंटरमीडिएटरी पार्टीज विल बी डिस्चार्ज। उसमें भी मैंने आपको केस 3 बताया था। अगर सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट है तो सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट में इंटरमीडिएटरी पार्टीज भी डिस्चार्ज नहीं होगी। Then you all know this concept has been deleted. Parties to notes, bills and checks. So page number 2.37 से लेकर पेज नंबर 2.52 यहां तक डिलीट हो चुका है। तो डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 2.52 डिस्चार्ज। या तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होता है या तो पार्टीज डिस्चार्ज होती है। सबसे पहला मोड ऑफ डिस्चार्ज इज पेमेंट, सी कैंसलेशन, आर इज और रिलीज, एन इज और
negotiation back. O is for operation of law. M is for material alteration and Q is for qualified acceptance. वापस से कुछ कुछ केसेस है जहां पे पार्टी इज डिस्चार्ज बट इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होता है. सबसे पहला इज वो पार्टी ने पेमेंट किया जो प्राइमरीली लायबल नहीं है. सी इज फॉर कैंसिलेशन. आर इज फॉर एन इज फॉर केस नंबर 2 नेगोशिएशन बैक. इंटरमीडिएटरी पार्टीज डिस्चार्ज हुई है, इंस्ट्रूमेंट अभी भी डिस्चार्ज. ओ इज फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ. एम इज फॉर material alteration and Q is for qualified acceptance. होल्डर ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को अग्री किया है बट कोई इंटरमीडिएटरी पार्टी है जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वही पार्टी डिस्चार्ज होगी, वही पार्टी डिस्चार्ज होगी. याद कीजिए सेक्शन नंबर 84 मोदी जी की कहानी. The drawer had sufficient funds in his account, but the payee did not present it within reasonable time. And in the meantime, the bank became bankrupt, जिसके वजह से the drawer has actually suffered the losses. उतने अमाउंट के लिए drawer discharge हो जाएगा. अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट रीजनेबल समय में डिपॉजिट हुआ है और बैंक बैंकरप्ट हो जाती है तो 84 अट्रैक्ट. तो देखो 84 अट्रैक्ट होने के लिए 1 ड्रॉवर ने जब चेक इशू किया था सफिशिएंट फंड्स होना जरूरी है. पेई रीजनेबल समय के अंदर उसको डिपॉजिट नहीं करता है और इस बीच मतलब चेक इशू करने के बाद और प्रेजेंट करने के पहले बैंक फेल हो जाती है, बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, जिसके वजह से तो एक्चुअली ड्रॉवर ने लॉसेस सफर की है. और पेई ने रीजनेबल समय में प्रेजेंट ना करने के वजह से ड्रॉवर को जो नुकसान हुआ है उठने के लिए वो लायबिलिटी से रिलाइव हो जाएगा. हाँ, अरे हाँ है ना. दिस सेक्शन इज अ इंपॉर्टेंट सेक्शन. ये तो वही है, अगर उसी पार्टी जिसकी लायबिलिटी है उसी की राइट बन जाती है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है. मटीरियल अल्ट्रेशन. मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंट, अल्ट्रेशन मतलब चेंज. 2 केसेस में मटीरियल अल्ट्रेशन होता है. 1 यू आर चेंजिंग द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, या तो फिर लीगल इफेक्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, या तो आप पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को चेंज कर रहे हो. उसी को क्या कहते हैं? मटीरियल अल्ट्रेशन. उसको क्या कहते हैं? मटीरियल अल्ट्रेशन. होल्डर अगर मटीरियल अल्ट्रेशन को मना कर देता है, होल्डर ही मना कर देता है, इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाएगा. बट अगर होल्डर एक्सेप्ट करता है, आपको प्रायर पार्टीज को फिर पूछना पड़ेगा आपको चलेगा क्या, उसने ऐसा चेंजेस किया है. अगर प्रायर पार्टी मना करती है, that party who did not give consent to the material alteration will be discharged. एक साइड पे हमने कहा है मटीरियल अल्ट्रेशन अगर किया है तो इंस्ट्रूमेंट या तो पार्टीज डिस्चार्ज होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. बट दूसरे साइड पे वी हैव अलाउड सर्टेन मटीरियल अल्ट्रेशंस. वी हैव अलाउड सर्टेन मटीरियल अल्ट्रेशन. ये अल्ट्रेशन अगर आप करते हो ना इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा और ना पार्टीज डिस्चार्ज होगी. हाँ या ना. 1 कन्वर्जन ऑफ ओपन चेक इनटू अ बेरर चेक. सॉरी, a conversion of bearer check into a order check. Conversion of open checks into crossed checks. Completing an inchoate instrument. Specially crossing a generally cross check. Cross check पे restriction add करना. All these are the kinds of material alterations which are allowed under the NI Act. ये करने से ना ही इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होता है और ना ही पार्टीज डिस्चार्ज होती है. Dishonor of a negotiable
instrument. Dishonor can happen either by non-acceptance or by non-payment. By non-acceptance can happen only in one case, and that is in case of a bill of exchange. If the bill has got dishonored due to non-acceptance, you need not even wait till the maturity. On an immediate basis, you can sue the prior parties. कब माना जाएगा that the bill has got dishonored due to non-acceptance? When there are more than one drawee, and these drawees are not partners, and it is not accepted by all of them, then it will be treated as if the bill has got dishonored due to non-acceptance. आपने बिल को प्रेजेंट किया एक्सेप्टेंस के लिए, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तब तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. द बिल विल बी ट्रीटेड एज इफ इट हैज गॉट डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस. The drawee in case of a bill of exchange is incompetent to contract. Drawee is a fictitious person. Drawee could not be found even after reasonable search. That time you can treat the bill to have got dishonored due to non-acceptance. A bill can also be dishonored due to non-payment. Due to non-payment. अगर non-payment की वजह से dishonor हुआ है, you are supposed to send a notice of dishonor to the drawer and to the previous holders in order to make them liable on the negotiable instrument. अगर आप dishonor की notice नहीं देते हो, you cannot make that party liable on the negotiable instrument. Notice of dishonor आप orally भी दे सकते हो, इन राइटिंग भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हो, फिजिकली जाके भी बोल के बता सकते हो. तो नोटिस देना जरूरी है. जब तक आप नोटिस नहीं देते हो, आप वो पार्टी को लायबल ट्रीट नहीं कर सकते हो. सो ऑब्जेक्टिव है नोटिस देने का दैट द पर्सन whom we want to make liable should be aware about the same. Notice cannot be given by a stranger to this particular negotiable instrument. Notice must be given by the holder to all the parties other than the maker. देखो very 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 important. किसको notice देते हो? To all the parties other than the maker of the promissory note, the acceptor of a bill of exchange, and the drawee bank in case of a check. अरे क्योंकि उन लोगों ने ही तो इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर किया है, उनको क्या नोटिस दोगे आप? उन्होंने ही तो कांड किया है, हाँ या ना? तो आपको दूसरी पार्टीज को देना होगा. मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रॉई बैंक इन केस ऑफ अ चेक, उनको नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं. अलॉन्ग विद दैट फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट है. फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट आपने ही आपके राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ डिसऑनर को वेव ऑफ किया है, तो आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं मिलेगा. यस और नो गाइस? Noting and protesting has been deleted, इसलिए cancel and cancel, protest. So noting starts on page number 2.62 and 2.65 तक noting and protesting जाता है. So now I am on page number 2.65. Dishonor of checks for insufficiency of funds in the accounts. This section is very, 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 very important. यहाँ पे क्या हुआ है? Yes, a check has been dishonored due to 3 reasons. बताओ. Insufficient funds, stop payment, drawer not allowing the holder to present the check. यहाँ पे when I issued the check for a legally enforceable debt. I issued the check for a legally enforceable.
अगर मैंने चेक गिफ्ट में दिया है, चैरिटी के लिए दिया है, तो क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा? सो देयर शुड बी अ लीगली एनफोर्सेबल डेट. द होल्डर शुड हैव प्रेजेंटेड द चेक विद इन अ reasonable period, no, not reasonable, within the validity of the check. And now the banker has returned the check stating that it has got dishonored due to insufficient funds or stop payment. तब आप ड्रॉवर के पास जाओगे 30 दिनों के अंदर. जैसे ही आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर मिलता है, आप ड्रॉवर के पास जाओगे 30 दिनों के अंदर एंड यू विल गिव हिम अ नोटिस और कहोगे चलो मैं मान लेता हूं आपसे जो हुआ है वो गलती से मिस्टेक हो गई, और एक बार तो आपकी गलती सुधारने का मौका आपको देना चाहिए. तो इसलिए अब मैं आपको मौका देता हूं आपकी गलती सुधारने का. 15 दिनों के अंदर मुझे पेमेंट कर दीजिए. 15 दिनों के अंदर अगर पेमेंट मिल गया क्या बात है, बट अगर आपको पेमेंट नहीं मिला, नाउ यू कैन मेक अ कंप्लेंट इन राइटिंग in the court of law within a period of 1 month. और कोर्ट आपको 3 तरीके के सजा दे सकता है according to its discretion. 1, he can send you to jail for a period of maximum, or there could be a fine maximum of 2 times the amount of the check, और both. लग रहा है बेशर्मी हो, फाइन तो लगाएंगे और साथ साथ में आपको जेल भी भेजेंगे. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? द ड्रॉवर इज अ कंपनी. क्या ना कंपनी बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम, इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम. सो क्या ना कंपनी हैव अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम, और उसी बैंक अकाउंट के चेक्स क्या कंपनी के नाम पे इशू किए जा सकते हैं? अगर कंपनी के नाम का इशू चेक डिसऑनर हो गया, आप किसको लायबल ट्रीट करोगे? बोलो. एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. यस और नो गाइस? अच्छा सुनो ना, वही ड्रॉवर है, वही पेई है, मल्टीपल चेक्स इशू हुए हैं और मल्टीपल चेक्स का डिसऑनर हुआ है. अब आप किसके, कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जाओगे टू फाइल अ केस? कौन सा? बताओ मुझे. If the check is an open check, if the check is an open check, yes, ड्रॉई बैंक जहां पे है वही jurisdiction apply होगा. But if the check is a cross check, yes, मतलब कलेक्टिंग बैंकर जहां पर है वो कोर्ट का jurisdiction अट्रैक्ट हो जाएगा. मल्टीपल केसेस है, फर्स्ट केस जहां फाइल हुआ है वहीं पे बाकी के केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे. हाँ, वही मतलब वही ड्रॉवर है और वही पे ही है. मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डिसऑनर, जहां पहला केस फाइल हुआ है वहीं पे बाकी के केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे. इसके बारे में कुछ बता सकते हो आप मुझे, स्पीडी ट्रायल के बारे में? स्पीडी ट्रायल मैं नहीं रिवाइज करने वाली हूँ. ये सेक्शन अच्छे से देख के आओ आप लेक्चर, उसके बाद ही मैं रिवाइज करोगे. कुछ मजा ही नहीं आ रहा है रिवाइज करने में. वर्चुअल बच्चा आप लोग बताओ. हाँ, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस के बारे में विनीत प्लीज बताइए. हाँ तो बोलो ना मुझे कुछ तो. अरे फाइन मत बताओ मुझे, हुआ क्या है वो बताओ. जैसे मैंने बताया था कि मेरी मेन बुक है, मेरी चार्ट बुक है, वही सारा कंटेंट जो मेन बुक है वो चार्ट बुक में दिया गया है. बट इन शॉर्ट
इतने सारे केसेस है, मैंने बताया था भोपाल गैस ट्रेजेडी को इतने साल लग गए थे जस्टिस लाने के लिए। तो कहीं एक इतने बड़े देश में इतने सारे राज्यों है, इन राज्यों में इतने सारे शहर है, इन शहर में न जाने कितनी सारी गलियां है, कहाँ पे एक ड्रॉवर ने पेई को चेक इशू किया था, उसका डिसऑनर हो गया और वो चेक डिसऑनर हुआ, केस फाइल किया है, वो केस को इंपॉर्टेंस देंगे या इतने बड़े कांड जो हो रहे हैं उनको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं? तो अब ऐसे केस में इफ यू फील के बहुत समय लग जाएगा आपको जस्टिस मिलते मिलते, यू कैन गो फॉर अ समरी ट्रायल। टेल मी समथिंग अबाउट दिस समरी ट्रायल। ओके, forget it. You all will revise it and only after, no, you all will watch the lecture. Only after you all watch the lecture, I will be doing the revision. ठीक है? No spoon feeding. हाँ, कौन बोलना चाहता है? सॉरी, हाँ तो बोलो ना, मुझे क्या पता है, आप कुछ बोल तो नहीं रहे हो, मैं ही आपको याद दिला रही हूँ सब कुछ। हाँ, मैंने बताया भी था कौन सा रेट्रोस्पेक्टिव है, कौन सा प्रोस्पेक्टिव है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग रिवाइज करेंगे बट लेटर ऑन। Currently, the revision of the Negotiable Instruments Act is over. So now, what are we going to do? Yes, Supreme Court का decision है, कुछ याद आया? It's a very, 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 very important case law. अभी हम लोग जाने वाले हैं to our institute's website. बोला था ना आपको, तो बोलते ही नहीं आ रहा है आपको। जुलाई 21 का पेपर देखते। दिस इज एन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर, आईसीआई का पेपर है, जो जुलाई 21 में एग्जाम्स हुई थी ना, तब मई में नहीं हुई थी, जुलाई में हुई थी। सीए इंटर की जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने एनआई एक्ट के पूछे वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? द रिवीजन इज डन, सो आई एम होपिंग यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई नीड यू ऑल ऑल्सो टू आंसर, ओके? आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम यू ऑल। So you know your answer paper is divided, your question paper is divided into two parts. 30 marks MCQ and 70 marks is subjective. So part 1 में आपके MCQs होते हैं और part 2 में आपको क्या करना होता है? From 5 questions होते हैं, जिसमें से question number 1 is compulsory. Okay, and out of the remaining 4, you have to answer any 3. Out of the remaining 4, you have to answer any 3. तो वो 4 में से आप कोई भी 3 आंसर करोगे और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। सो बेसिकली इन ऑल 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है, 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो बेसिकली वो एक एक सेट में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछती है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी आर ओनली डूइंग एनआई एक्ट। अगर आप देखोगे क्वेश्चन 1 में ए है, बी है, सी है और डी है, मतलब क्वेश्चन 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन और क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चंस है जिसको आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करना है। मतलब अब देखो कौन से क्वेश्चंस है। डी वाला एनआई एक्ट का है, सी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, बी इज कंपनीज एक्ट, ए इज ऑल्सो कंपनीज एक्ट। मतलब अगर सपोज आपने एनआई एक्ट को ना ऑप्शन में छोड़ा है, तो ये जो एनआई एक्ट का कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स दैट यू आर लूजिंग इज नॉट फ्रॉम दैट 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। 3 मार्क्स दैट यू आर लूजिंग इज फ्रॉम द 100 मार्क्स दैट यू आर सपोज टू अटेम्प्ट। नहीं आई बात समझ में? सो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज नॉट लाइक बीकॉम कि 2-3 चैप्टर्स छोड़ भी दिए तो कवर अप हो जाएगा।
अच्छा, आप लोगों की बात ही अलग है, और जितना कम पढ़ाई किया उतना ज्यादा लिख के आ गए ना आप लोग। तो वैसे भी ऐसे ही पास हो गए ना, विदाउट एग्जाम, बिगर लिखे पास हो गए, मतलब अनोखी बैच है आप लोगों की। आई एम सिटिंग, आ जाइए। ओके ओके, लेट्स चेक दिस पेपर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A signs his name on a blank check. A signs his name on a blank check with not negotiable crossing. मतलब होशियार है A, उसने ब्लैंक चेक साइन किया है, इसलिए उसने अपने आप को सेफगार्ड कर दिया है, चेक को क्रॉस कर दिया है और प्लस नॉट नेगोशिएबल लिख दिया है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, एचडीसी का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट, मतलब कल जाके कोई भी डिफेक्ट अगर आएगा, ये डिफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा और आप एचडीसी नहीं माने जाओगे। क्या यही होता है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग? सो इट्स अ ब्लैंक चेक. So and this blank check was crossed with not negotiable का restriction, which he gives to B with an authority to fill up a sum of 3,000 only. So A ने B के फेवर में चेक इशू किया और अमाउंट नहीं भरा, बट उसने उसको क्रॉस किया और नॉट नेगोशिएबल का रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया. बट B फिल्स इट अप फॉर 5,000. सो बेसिकली B को 3,000 भरना चाहिए था, बट फ्रॉड्यूलेंटली ही फिल्स अप 5,000. Who takes it in good faith. अब देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जाल बिछाई है, यहाँ पे जानबूझ के इंस्टीट्यूट ने वर्ड्स यूज किए, गुड फेथ, फॉर कंसिडरेशन वगैरह वगैरह. अरे एचडीसी का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट होगा ही नहीं, बच्चा गिर जाएगा यहाँ पे, उसके याद आएगा गुड फेथ, फॉर कंसिडरेशन, ऐसा वैसा, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, पूरा अमाउंट मिलेगा. अरे एचडीसी को मिलता है कब? अगर एचडीसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा तब. यहाँ पे तो चेक मार्क है नॉट नेगोशिएबल, तो एचडीसी का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट होगा ही नहीं. Examine whether C is entitled to recover the full amount on the instrument from B or A as per the provisions of the Negotiable Instruments Act. So how much will he be able to recover? Only rupees? Yes, my dear friends, I'm so proud of you. यहाँ पे C will not be able to recover पूरा 5,000 because his title is defective, unfortunately. HDC होके भी उसको हम HDC नहीं बोल सकते because of not negotiable crossing. He will be able to recover, but only that much as was intended to be paid, and that is rupees 3,000. लिखोगे आंसर ये? लिखो. क्वेश्चन कैसे लिखोगे? सॉरी, जुलाई 21 क्वेश्चन पेपर, आंसर 1D. वेरी गुड. गुनगुन, संस्कार, मसीरा, गुंजन, अमय, प्रिंस, तेजरीमूल, निकिता, वैभव, ऋचा, अलका, नेहा, तेजल, रूपल, अभिषेक. वेरी गुड. लिखो ना. ब्रिजेश ने नहीं रिप्लाई किया. Okay, write down answer 1D, July 21 paper. Answer 1D, July 21 paper. 1D, D for Delhi. Okay, write down point number 1, facts. A issues a blank check marked not negotiable to Mr. B. A issues a blank check to Mr. B marked not negotiable. Marked
not negotiable. रेफरेंस. अच्छा आगे लिख लो. मार्क नॉट नेगोशिएबल विद द ऑथोरिटी टू फिल अप ₹3,000. with the authority to fill up ₹3,000. A reference. A cross check with not negotiable restriction a cross check with not negotiable restriction shall not be capable of giving a better title to the check of giving a better title to the check than that THAN THAT than that which the person from whom he took it, then that which the person from whom he took it. From whom he took it. और एक पॉइंट लिखो. Such checks continue to be transferable. उसके वजह से ही तो बी सी को दे पाया ना चेक. ये भी तो बोलना जरूरी है. Such checks continue to be transferable. ये आपने रेफरेंस लिखा है. अब पॉइंट 3 लिखिए एनालिसिस. Point 3 please लिखिए analysis. In the given question, A gave a blank check to B with a not negotiable crossing. B had the authority to fill only a sum of ₹3,000. To fill only a sum of ₹3,000. But he filled it up for ₹5,000. This makes B's title defective. B then endorsed it to C. For consideration of ₹5,000. अब
देखो क्वेश्चन पूछा है कि क्या सी पैसा रिकवर कर सकता है, तो इसलिए लास्ट पॉइंट लिखो कंक्लूजन में. हाँ लिखो लास्ट पॉइंट कंक्लूजन. बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव, we may conclude, because of the reasons stated above, we may conclude that C is not entitled to recover the full amount. क्वेश्चन देखो पूछा है, इज ही एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल अमाउंट, तो आपका आंसर भी वही होगा. सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल अमाउंट फ्रॉम बी और ए, फ्रॉम बी or A, as C cannot acquire a better title than that of B. As C cannot acquire a better title than that of B, और बी के वहां पे ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफरर, फुल स्टॉप, हो गया. देन दैट ऑफ बी. देखो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, आप क्या कर सकते हो, फैक्ट्स को स्किप कर सकते हो. सुन रहे हो क्या आप मेरी बात? यू नीड नॉट राइट डाउन द फैक्ट्स इफ इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड यू कैन कंटिन्यू वट एवर आई हैव डिक्टेटेड. ठीक है? If you see a Negotiable Instruments Act question, please stop me over there. क्वेश्चन 1 में तो एनआई का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन 2 में है? ये रहा, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है एनआई एक्ट का. मिस्टर हर्षा, ओके, हर्ष, जो भी है, whatever. Don't go into the name, it's okay. What is in a name? Mr. Harsh donated 50,000 to an NGO by a check for sponsoring education of one child for 1 year. Donated a check. क्या यहाँ पे legally enforceable debt है? Later on, he found that the NGO was a fraud and did not engage in philanthropic activities. He gave a stop payment. Check is dishonored due to stop payment to his banker, and the check was not honored by the bank as per his instruction. ओए आंसर्स लिखना बंद करो. The NGO has sent a deemed notice and threatened to file the case against Mr. Harsh, whatever. Advise Mr. Harsh about the course of action available under the Negotiable Instruments Act. बोलो यहाँ पे क्या NGO ये मिस्टर के अगेंस्ट 138 के अंदर केस फाइल कर सकता है? अरे स्टॉप पेमेंट से डिसऑनर हुआ है, फिर भी नहीं, क्यों? Because the check was not issued for a legally enforceable. तो 138 अट्रैक्ट लिखो. आंसर 2D जुलाई 21 पेपर. आयुष फोन अंदर रखो, आप भी बेटा. आंसर 2D. If you do not write down the answer number, your answer is not going to be checked. These are certain basic things which you all know right from the beginning. And do not write down your wrong roll number. बच्चे का मैसेज आया है, मैं आपको बोलती हूँ. And then you all cry कि मैम ऐसा हो गया, हम क्या करें एंड वगैरह वगैरह. So don't let this happen to yourselves.
So very good. Vineet, Gungun, Prerna, Happy, Rawat, Alka, Prince, Tejal, Anishka, Sanjot. बट आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया है रीजन के साथ. आप लोगों ने लो लिखा है बट यू ऑल डिड नॉट गिव मी द रीजन वाई. क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली रेफरेंस से शुरुआत कर रही हूं. राइट ऑन. पॉइंट नंबर 1 रेफरेंस. पॉइंट नंबर 1 रेफरेंस. लिखो, we know the section number over here, so we are also going to quote the section number. Okay, so according to section 138 of the Negotiable Instruments Act, T capital, N capital, I capital, A capital, according to section 138 of the Negotiable Instruments Act. लिखो ना. According to section 138 of the Negotiable Instruments Act, okay fine, 1881, comma 1881, if a check is dishonored after its issue, if a check is dishonored after its issue, after its issue for a legally enforceable debt, then the drawer shall be deemed to have committed an offence. Then the drawer shall be deemed to have committed an offence and shall be punishable. अब देखो, ज्यादा इमोशनल नहीं होना और पनिशमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है. इट्स ओनली अ 3 मार्क्स क्वेश्चन. 4 या 5 मार्क का होता तो आप पनिशमेंट भी लिखते. Shall be deemed to have committed an offence and shall be punishable. Thus, reference में आप second sentence लिख रहे हो. Thus, a check given as a gift or donation Thus, the check given as a gift or donation would be outside the purview of this section. Would be outside the purview. P-U-R-V-I-E-W. It's one word. Outside the purview of this section. This section मतलब 138 हमने already quote किया है. P-U-R-V-I-E-W. V-I-E-W, purview of this section. Next, point number 2, reference. Point number 2, analysis. In the given case, Mr. Harsh with an A. A is silent. In this case, Mr. Harsh, whatever, donated 50,000 rupees. Rupees 50,000. In the given case, Mr. Harsha or Harsh donated rupees 50,000 to an NGO by check for sponsoring a child's education for 1 year. By check for sponsoring a child's education for 1 year. What peach? A child's education for 1 year. On finding about the fact that the NGO was a fraud, on finding about the fact
that the NGO was a fraud, he instructed his bankers for stop payment. He instructed his banker for stop payment. मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला है, आपको ही रिपीट करना पड़ेगा. He instructed his banker for stop payment. और एक सेंटेंस लिखो एनालिसिस में. In lieu of that, in lieu मतलब in lieu of that, the NGO sent a demand notice. The NGO sent a demand notice. Demand करा है 50,000 रुपए. Sent a demand notice and threatened to file a case against him. अब conclusion लिखिए. And threatened to file a case against him. As conclusion, as the check was given as a donation, as the check was given as a donation, there is no legal enforceable debt. There is no legally enforceable debt. As the check is given as a donation, there is no legally enforceable debt. And thus, Mr. Harsh with a silent A is not liable for the donated amount, is not liable for the donated amount which is not honored by the bank to the NGO, which is not honored by the bank to the NGO. Which is not honored by the bank to the NGO. Next देखते हैं. It's not even 6 o'clock. And I already told you all don't have SIRS class. And if you want to leave, you can go. I am taking the class for my virtual students. Okay? So you all are free to go. Examine the following cases with respect to their validity. State your answers with reasons. दो मार्क के 2 questions है. Validity. A bill of exchange is drawn mentioning expressly as payable on demand. It is payable on demand. It is payable on demand. The bill will be at maturity for payment on 4th if it is presented on 1. Invalid. Why? It is payable on demand. So you will not get grace days for this. आप 1 तारीख से 3 दिन ऐड करोगे और 4 तारीख को पेमेंट दोगे, ऐसा होता है only if it is a time instrument, not if it is a demand instrument. Demand instrument में जब डिमांड किया उसी समय पे पेएबल हो जाता है. So this statement is invalid. और आप reasons, हाँ, check cannot be a time instrument, it is always demand. But a bill or a promissory note may be a time or a demand instrument. इस केस में हमारा bill is a demand instrument. डिमांड इंस्ट्रूमेंट में ग्रेस डेज नहीं होते हैं. तो यहाँ पे अगर 1 तारीख को डिमांड किया है, 1 तारीख को ही पेमेंट दिया जाएगा. 1 + 3 days ऑफ ग्रेस, 4 तारीख का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड. आई एम नॉट मेकिंग ऑल राइट दिस आंसर. बस अ होल्डर गिव्स नोटिस ऑफ डिसऑनर of a bill. A holder
gives notice of dishonor of a bill to all the parties except the acceptor. Holder gives notice of dishonor to all the parties except the acceptor. The drawer मतलब जिसने बिल बनाया था, claims that he is discharged from his liability as the holder fails to give notice of dishonor to all the parties thereto. अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ. Notice of dishonor is not required to be given to the maker of the promissory note, to the acceptor of a bill of exchange, and to the drawee of a check. यहां पे होल्डर ने सबको नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया है एक्सेप्ट द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसको वैसे भी देने की जरूरत नहीं है. ही डज नॉट हैव टू गिव द नोटिस टू द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो होल्डर ने जो किया है वो सही है, ड्रॉवर जो बोल रहा है वो गलत है. आई क्या बात समझ में? Companies Act, General Clauses Act, Interpretation of Statute, Companies Act. ये क्या है? Companies Act, Contract Act, General. Okay, fine, इतना ही है. लिखना है क्या आपको वो? यस, अदर लॉज अगर आप देखते हो 10 मार्क्स के अदर लॉज होते हैं, so जिससे आपका 40 मार्क्स इज अदर लॉज एंड 60 मार्क्स इज कंपनीज एक्ट. यू ऑल वांट टू राइट डाउन दिस आंसर? लिख लो. आंसर नंबर 3C. आंसर 3C. आंसर 3C. अब जाओ, जवाब देने की जरूरत नहीं है. You all can leave. I already told you all can leave if you all want to. जाइए. 3C. It's okay. आपने खुशी खुशी मुझे पैसे दिए, मैंने खुशी खुशी आपसे पैसे ले लिए. आप बस यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा. आप लोगों को ज्यादा प्यार दिया हुआ चलता नहीं है. चलो, क्या कर सकते बताओ? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ. आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन डे 1 हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी, दैट इज अप टू यू. और फिर यही बैच के वर्चुअल बच्चे जब रैंक में आएंगे ना, तब आप लोगों को बुरा लगेगा, या पास होएंगे ना तब आपको बुरा लगेगा. क्या? कौन? मेरे को आंसर्स आ रहे हैं उन लोगों के. आ जाइए, इट्स ओके. हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी, दैट इज अप टू यू. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल इनिशियली. बाकी आई एम सिटिंग ओवर, आई टोल्ड ऑल. मैं बाद में बोलना नहीं है मुझे आप लोग कि मैम सब कुछ समझ गया, सब कुछ याद भी है, बट लिखने नहीं आता है. एक बच्चे ने अगर ये सवाल मुझसे पूछा, आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक अवे. I will tell you, look at your past record. Then you will understand why you all are not able to present the answers. चलो, लिखो आंसर 3C. Point 1. अब इसमें भी 2 पॉइंट्स है ना, वैलिड है या इनवैलिड है. 2 मार्क का ईच है. हाँ, साथ में आंसर 3C लिखो और फिर 1 दो, 1 छोटा 1. सॉरी, नहीं, ऐसे क्वेश्चन में फैक्ट, रेफरेंस, एनालिसिस, कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है. ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, आपको उतना ही जवाब देना है ना. अब आप लिखो, आई विल टेल यू व्हाट यू ऑल विल राइट. ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना. अ बिल ऑफ एक्सचेंज in which no time for payment is mentioned is a demand instrument. हाँ, लिखना है. लिखो आंसर 3C1. A bill of exchange
a bill of exchange in which no time for payment is mentioned, is payable on demand, is payable on demand. No grace days are given to demand instruments. No grace days are given to demand instrument. Thus the statement is not valid. इंस्टीट्यूट ने पूछा है वैलिड है या नहीं, तो हम कहेंगे नॉट वैलिड. Thus the statement is not valid. Thus the statement is not valid. And answer 3C2, छोटा 2. एग्जैक्ट लैंग्वेज में देख लेती हूँ एक्ट की. लिखो, नोटिस ऑफ डिसऑनर, notice of dishonor must be given to all parties. Notice of dishonor must be given to all parties other than the maker of a promissory note, acceptor of a bill of exchange, or the drawee in case of a check, or the drawee in case of a check. Or the drawee in case of a check. फिर आगे लिखो, in this case, the holder gives the notice of dishonor. In this case, the holder gives the notice of dishonor to all the parties except the acceptor. Except, E-X-C-E-P-T, except the acceptor. A-C-C-E-P-T-O-R. For which the drawer claims that he is discharged from his liability. उसने सबको नोटिस दी एक्सेप्टर के अलावा, इसलिए ड्रॉवर बोल रहा है मैं तो डिस्चार्ज हो गया. उसने एक्ट को फॉलो नहीं किया. क्या लिखा आपने? The drawer claims that he is discharged from his liability. फिर और एक लास्ट सेंटेंस लिखिए. This claim of the drawer is not valid as the acceptor of a bill need not be posted, need not be sent a notice of dishonor. As the acceptor of a bill need not be sent this notice of dishonor. मतलब उसको notice of dishonor भेजने की जरूरत. Documents, everybody, please concentrate, baby. दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, बताओ बच्चों, स्टैट्यूट बनाता कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और उसको प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है. उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? भारत सरकार करता है. उसको इंप्लीमेंटेशन भारत सरकार करता है. सुन के लेना जो मैं कह रहा हूं. आपको वोडाफोन का केस याद होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का. भाई और बहनों, लॉ में ये लॉ बना है, लॉ में करना है.
पढ़ने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी था, पढ़ने वाला वोडाफोन भी था, पढ़ने वाला वोडाफोन भी था, पढ़ने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी था, पढ़ने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी था, पढ़ने वाला वोडाफोन भी था। लॉ दोनों का सेम ही था, दोनों भी एक ही लाइन पढ़ रहे थे, पर दोनों का इंटरप्रिटेशन, क्योंकि दोनों का, सर आप दोनों की इंग्लिश अगर सेम है तो इंटरप्रिटेशन अलग क्यों होते हैं? बिकॉज वो, ये मैथ्स नहीं है, 2 + 2 4 नहीं होता, ये लॉ की भाषा है, हर आदमी उसका मीनिंग अलग निकालता है। और दोस्तों इसलिए केस 11,000 करोड़ की थी, कहां गई? को सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी। बताओ कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों थी? बिकॉज दोनों, वोडाफोन बोला था मेरे 11,000 करोड़ नहीं है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा मेरे 11,000 करोड़। बताओ ऐसे समय पे अगर लॉइंग एक ही है, झगड़ा क्यों बढ़ा? बिकॉज दोनों को भी आईओएस का नॉलेज, अगर काश दोनों को भी आईओएस का नॉलेज होता तो आज कोर्ट में केसेस, आज भारतीय कोर्ट में केसेस ज्यादा क्यों भाई और बहनों? बिकॉज किसी को भी आईओएस पढ़ना है। आप सभी लोग इस छोटी सी उम्र में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ोगे, आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल होगा सुप्रीम, नहीं कॉन्सेंट्रेट। दुनिया में 2 रूल है आईओएस के, 2 रूल, प्राइमरी रूल, फिर आएगा एड्स, इंटरनल एड्स, फिर एक चीज आएगी, और कौन सी? डिड्स को पढ़ते समय क्या करें, और एक चीज होती है सब्जेक्ट टू नॉटविथस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडेड दैट। इतना ही करेंगे तो चैप्टर खत्म। तो बताओ बच्चों पूरे चैप्टर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 1 रूल्स, 2 एड्स, 3 डिड को कैसा पढ़े, 4 नॉटविथस्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडाइस एंड सब्जेक्ट टू का, तीनों का मतलब बस इतना ही करेंगे, चैप्टर खत्म। तो पूरे चैप्टर के सिर्फ 2 ही पेज आपको दिख रहा है, पर 2 पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करना। एक होता है रूल, रूल में 2 बच्चे बने प्राइमरी, अरे एड्स 2 बच्चे बने इंटरनल, अरे तीसरे बच्चे का नाम बोलो, डिड को कैसा पढ़े, और चौथी बात विदाउट प्रेजुडाइस, नॉटविथस्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है। अरे देवियों सज्जनों, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल में बताओ क्या डिफरेंस है? प्राइमरी रूल के 6 बच्चे बताओ कौन से एक आपको दिख रहा होगा यहां पे। पहली बात तो लिटरल, दूसरी बात रीजनेबल, तीसरा एग्जिस्टिंग जनरस, चौथी बात बेनिफिशियल, पांचवी बात हार्मोनियस, और एक और एक्सेप्शनल। ये रूल्स है, मतलब दिस रूल्स आर टू बी यूज्ड व्हेनेवर यू वांट टू इंटरप्रेट द लॉ। इन रूल्स का इस्तेमाल करके ही लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो कम से कम आपका कंफ्यूजन होगा। प्राइमरी के अंदर जो 2 बच्चे हैं, एक लिटरल है, एक रीजनेबल है, दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर आप लाइन के बाहर नहीं जाते, जो लिखा वही यूज करते हो, लिटरल क्या रीजनेबल। यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, लिटरल, यू आर गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स। लिटरल से पढ़ते पढ़ते डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अरे बोल रहे नहीं? आप बताओ ना दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूं 149(1) में डायरेक्टर ओबीसी में 1 होना चाहिए, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज बहुत सीधी है क्या? नहीं। कंफ्यूजन है क्या? एम्बिग्यूटी है क्या? लिटरल लगा है, टेंशन ना ले। पर कभी कभी लिटरल लगाने से मीनिंग निकलता ही नहीं, कुछ भलता ही मत नहीं, लॉ मेकर के इंटेंशन खराब हो जा रहे हैं, उस केस में क्या लगाएंगे? You have to read between the lines, आपको शब्दों के बाहर जाके पढ़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक ड्यूरिंग एजीएम। बताओ बच्चों, प्रॉक्सी बोल नहीं सकता क्या? मतलब लिख सकता क्या? अरे पर लॉ में तो लिखा है ना, बोल नहीं सकता। दोस्तों आपको मंशा जानना होगी, इंटेंशन पहचानना होगा। ये आदमी बोलने को अलाउ नहीं कर रहा, मतलब लिखने को भी अलाउ कैसे करेगा? इसका मतलब लिटरल यूज क्या? रीजनेबल। एक बात पूछूंगा, बचे हुए 4 में से बताओ मैं किसकी बात करूं? अरे दूध, दही, अरे छाछ, पनीर, श्रीखंड, आइसक्रीम एक्सेट्रा। उस एक्सेट्रा का मीनिंग ऐसा होगा जैसे दूध के प्रोडक्ट होंगे। अगर दूध, छाछ एक्सेट्रा मतलब क्या? डू एक्सेट्रा विल टेक द कलर ऑफ एनी प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू मिल्क। इसके मैं लिपस्टिक बोल सकता हूं क्या? अरे लाइनर, गन पाउडर बोल सकता हूं क्या? मैं टैल्कम पाउडर बोल सकता हूं क्या? नेल पॉलिश बोल सकता हूं क्या? अरे सर कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ये ब्यूटी प्रोडक्ट है। और आई डोंट टॉकिंग अबाउट मिल्क प्रोडक्ट्स। ये कौन सा रूल है? अच्छे से बोलो। आज के बाद में किसी ने कुछ गड़बड़ किया, जस्टिम जनरेस, गाली नहीं देने का, क्या बोलने का? जस्टिम जनरेस, गाली गलत शब्दों के बदले इजस्टिम जनरेस दे दो, मीनिंग दोनों का सेम ही है। आज के बदले किसको कुछ गलत बोलना है, गाली, गलत शब्दों का प्रयोग, मां बहन कुछ नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे उसको? जस्टिम जनरेस। गाली भी हो जाएगी, उसको समझ भी जाएगा मेरे को गाली दे रहे, और आम जनता को समझेगा भी नहीं। एवरीबॉडी
कब ऐसा लगा बूम बूम, ठीक है, बूम बूम। अच्छा एक बात मैं आपसे, दोस्तों, एक प्रोविजन ये बात कर रहा, दूसरा प्रोविजन ये बात कर रहा, क्या करेंगे? ऐसे समय पे हार्मोनियस करेंगे। If one provision is talking something different, other provision talking something, in that case you are supposed to use what? दोस्तों दो चीजें अलग अलग थी, एक ही मुद्दे पर ये अलग बात कर रहा था, उसी मुद्दे पर ये अलग बात कर, दोनों को क्या कहेंगे इसको? एक बात पूछू क्या? एक बात है जो बड़ी खास है दोस्तों, मिस्टर पॉश। मिस्टर पॉश का देखो जोश दोस्तों। आप इसका रूल क्या है? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, इसको हेडन्स रूल भी बोलते हैं, इसके और क्या मिस्चिफ रूल भी बोलते, 3 नाम है इसके। देखो पॉश के केस में क्या हुआ था, पॉश को लॉन्ग फॉर्म बोलो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल। ये एक्ट में क्या लिखा नहीं था कि एप्लीकेबिलिटी किसको है। अब दोस्तों जब बना था ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था कि महिलाओं को कोई छेड़े तो बजा देंगे, और वो लिव इन में रहने वाली लड़की उसको भी ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसे कि उसकी बीवी धर्मपत्नी है। जैसे किसी मिस्टर पॉश जैसे इंसान ने किसी लड़की को धोखा दे के लिव इन रिलेशनशिप के अंदर छोड़ दिया, लड़की रोई, लड़की को लॉ ने आधी प्रॉपर्टी दे दी। उसी के 6 महीने बाद एक किस्सा मिस्टर पॉश के साथ में हुआ। अब की बार लड़के ने लड़की को नहीं, लड़की ने ही पॉश को निकाला, और पॉश बहुत रोया। अब पॉश डिमांड कर रहा है वो लड़की की आधी संपत्ति मेरी। आधी संपत्ति तो बहुत दूर पुलिस ने डंडे से धोया भाई और बहना। बताओ ऐसा क्यों? बिकॉज इसको बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। मैंने द लॉ वाज इंट्रोड्यूस, यू आर सपोज्ड टू चेक द लॉ वाज इंट्रोड्यूस फॉर हुम। आखिरी लॉ किसके लिए आया था, उसी को ही उसका बेनिफिट मिला, इसलिए लिखता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। एवरीबॉडी इसे नाम लिखा, किसके बेनिफिट के लिए आया था? महिलाओं के लिए। और पॉश कौन है? पुरुष है, तो इसको फायदा होगा क्या? नहीं होगा। अगला सवाल, कभी वो मेल लगता है, कभी वो शाल लगता है, कभी वो एंड लगता है, कभी वो और लगता है, कभी कभी मेरे दिल में कभी मे को शल यूज करना होगा, और शल को हमेशा में ही होता है, और शल पर कभी कभी पढ़ते समय आपको ऐसा लग रहा है कि मे का इसका मतलब वो रेपिस्ट है, रेपिस्ट मे भी पनिश्ड। अरे कैसा मे है ये? इस मे को तो ऐसा समझ लेना। और दोस्तों कभी वो एंड लगता है, एंड को एंड ही पढ़ना, और को और ही पढ़ना। 99% केसेस में वही होगा, और को और पढ़ेंगे, एंड को एंड पढ़ेंगे, पर कभी कभी एंड को और को जरूरत पड़ने पे, क्योंकि अगर एंड लिखकर उसका मतलब बेमतलब हो रहा होगा तो आपने उसका मतलब और कर लेना, और लिख के उसका मतलब बेमतलब हो रहा तो उसका मतलब एंड कर लेना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? दोस्तों सुनो ना, एक बात बोलना चाहता हूं। सेकेंडरी में आप याद कर, बेगम ले गई सॉस में। अरे बेगम को ले गए, अरे बेगम को ले गए, बेगम को ले गए। कुछ जो मुझे ले गए इस समय देख रहे हैं वो शक भरी निगाहों से देख रही है, इंसान बेगम लेगम क्या बोल रहा है। दोस्तों लेगम को ही नड़ा दिया बेगम। पॉइंट नंबर 2 में ले गए, उसको बता दिया ले गए। और तीसरे में सॉस में ए नौसीचूर सॉसेस। देखो ना क्या नाम है इसका, नौसीचूर, मोतीचूर नहीं बेटा, नौसीचूर। एक बात हम पूछेंगे आपसे, एक कौन जवाब देगा? मैं तीनों में से किसकी बात कर रहा हूं? क्या मैं बेगम की बात कर रहा हूं, क्या मैं लेगे की बात कर रहा हूं, क्या मैं नौसीचूर सॉसेस की? आप बताना, देखते किसका दिमाग कितना चलता है। भाई और बहनों, एक बार मुझे बोलना है, सप्तपदी हिंदू लॉ में ऐसा लिखा है कि जब भी शादी होगी 7 फेरे होंगे अग्नि के इर्द गिर्द। एक बच्चा इमोशनल होगा सिगारेट के सुट्टे के साथ में, कहे शादी एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है? क्यों पता, वो भी तो एक अग्नि होती है। क्या सिगारेट अपने आप में अग्नि है क्या नहीं? क्यों नहीं? वैसे अग्नि है, पर हम लोग ये देखते हैं आज भी हिंदू संस्कृति में जब भी शादी होती है अग्नि को हवन कुंड रख के प्रॉपर धुआं निकलता है, ऐसा होता है राउंड में, और उसी को ही हम लोग क्या मानते हैं। इसका मतलब क्या हो? जब भी लॉ को इंटरप्रीट करेंगे, अगर शब्दों का मीनिंग साफ नहीं निकलता, बोलो आगे, उसका मीनिंग वो निकालना जो कस्टम से, ट्रेडिशन से, परंपराओं से चला आ रहा है। अरे बोलो,
क्या है इस रूल का नाम? ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रिजेस्ट कॉन्ज्यूटेडो। इसको हम लोग इतना याद रखे, बेगम नाम है इसका। अब बात करेंगे लेगे। चलिए रुको, इसके बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एग्जांपल दिया था। आज के समय देखो, बैंकिंग रेगुलेशन बहुत पुराना है। जब उस समय आया था वहां पे एनईएफटी था क्या? नहीं था। आज जब एनईएफटी में कोई फंड ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, और अगर आप भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इस्तेमाल करो तो आपकी भूल होगी, बिकॉज आपको जानना होगा, भले वो बैंक का लॉ है, पर जब उस समय बना था तब एनईएफटी, आरटीजीएस, अरे नेट बैंकिंग, अरे एटीएम, अरे मोबाइल बैंकिंग, जब ये चीजें जब लॉ बना जाता था ही नहीं। तो इन सब चीजों में अगर कांड हो गया, मोबाइल में हो गया, एनईएफटी में हो गया, तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो भाई? आप बोले नहीं उसमें बैंकिंग रेगुलेशन में तो लिखा ही नहीं, एनईएफटी की चोरी होती। अरे बेवकूफ, उसके लिए ये जानना होगा जब वो आया था तब ये था क्या? जब भले ही वो बैंक के लिए जब ये चीजें थी नहीं, इसके लिए जो नया लॉ बना है आईटी एक्ट, वो पढ़ना जरूरी है। कम ऑन एवरीबॉडी। अभी मैंने क्या पढ़ा? लेगे। जब भी लेगे बोलूंगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए। जब भी बेगम बोलूंगा, बेगम सात सप्तपदी, याद ना, बेगम लेगम सात फेरे कर रही है। क्या लेगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेगे। और तीसरी बात क्या है? नौसीचूर मोतीचूर। एक बात बताओ, एंटरटेनमेंट, मोतीचूर का लड्डू खाएंगे तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही। मोतीचूर सॉसिस, नौसीचूर सॉसिस। और सर ये कहां से लाया आपने एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट 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 अगर 3 जगहों पर लिखा है, अगर मान लो यहां पे रिलायंस का कौन सा पार्क है वो? अच्छा, रिलायंस का कौन सा है लोनावाला के पास? इमेजिका। वहां पे लिखा है इमेजिका एंटरटेनमेंट्स। यहां पे पीवीआर के बाजू में भी लिखा है पीवीआर एंटरटेनमेंट्स। आप बताओ, दोनों भी शब्दों का स्पेलिंग सेम आए तो लॉ कह रहा है दोनों का मतलब एक नहीं होगा। जो रिलायंस इमेजिका है वहां पे एंटरटेन का मतलब होता है वाटर पार्क या राइड्स। अगर पीवीआर सिनेमा में आप गए, तुम्हारे यहाँ पे वाटर पार्क नहीं, क्या आप सब मौत धोएगा, बाउंसर धोएंगे आपको और आपके ऊपर मूवी बनाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। आपको समझना चाहिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में उन शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर कोई थिएटर अपने बाहर एंटरटेनमेंट लिख रहा है, आप उसको बोले भाई वाटर पार्क किधर का, इतना मोड़ा है। इसीलिए समझना चाहिए। अरे बोलो क्या, जिस शब्द का इस्तेमाल, बोलो क्या, जहां पे हो रहा ना वो कॉन्टेक्स्ट देखिए। भले ही दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का नाम एंटरटेनमेंट है, पर दोनों के विचार, एक्सप्लेनेशन, मीनिंग देखना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में। तो नौसीचूर सॉसिस बोलते हो, नौसीचूर मतलब मोतीचूर, और मोतीचूर खाते खाते एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट वर्ड को याद रखना। बोलो बच्चा, बेगम ले गए सॉस में। अब बताओ बेगम मतलब कौन सा एग्जांपल आएगा? बेगम मतलब 7 फेरे सप्तपदी। बेगम ले गए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ले गए। और तीसरी बात, अरे सॉस का मतलब क्या है? मोतीचूर, नौसीचूर, मोतीचूर, मोतीचूर खाएंगे, एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट का एग्जांपल देखो बच्चों, मेरा काम सिर्फ एग्जांपल देना नहीं है। मुझे बड़ी ये समस्या होती है, मैं टेंशन लेता हूं कि अगर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हो सकता है एग्जामिनेशन में उसका एग्जांपल याद नहीं आया। तो अगर आप लेगे बोल रहे हो, आपको बैंकिंग रेगुलेशन याद नहीं आया, आप कस्टम क्या बोलते हैं बेगम बोल रहे हो, लेकिन आपको सप्तपदी नहीं याद है, और नौसीचूर मोतीचूर बोल रहे हो आपको एंटरटेनमेंट, तो फिर मैं पढ़ा के फायदा क्या है? क्या पढ़ाना ही मेरा काम है, आपको रिटेंशन भी करवाना? आपको मार्क्स कब मिलेंगे? एक बात पूछूं क्या, डायरेक्टरी और मैंडेटरी का डिफरेंस बताओ। कौन सा नहीं करने से पनिशमेंट होती है, डायरेक्टरी या मैंडेटरी? और कौन सा, देखो स्वच्छ भारत इंडिया में डायरेक्टरी या मैंडेटरी? आपने सिंगापुर में अगर एक भी पाउच रास्ते पे भेजा ना, रास्ते पे डाल दिया, वहां पे आपको पहले डंडे से धोएंगे, फाइन लेंगे और आपके हाथों से उठाएंगे वापस। आप बताओ मुझे मैंडेटरी के जीएसटी इंडिया में मैंडेटरी है क्या? क्या डायरेक्टरी जीएसटी डायरेक्टरी है? मेरी इच्छा है भरूंगा, नहीं इच्छा भरूंगा। देखते 135 में व्हाट इज डायरेक्टरी? 135 सीएसआर भरना डायरेक्टरी है, क्या बनाना मैंडेटरी है? कमिटी। आई होप बताओ मैंडेटरी और डायरेक्टरी में कौन सा नहीं करने से पनिशमेंट होती है? कौन सा नहीं करना आपको जेल में भी ले जा सकता है? कौन सा सिर्फ एडवाइजेबल है? दोस्तों दुनिया में इंटरनल एड्स भी होता है, एक्सटर्नल एड्स भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्स हियर? अगर मान लो कोई बेयर एक्ट की चीजें आपको इंटरप्रेट करने में मदद कर रही है तो उसका नाम क्या होगा? और कोई चीजें बेयर एक्ट में नहीं है फिर भी आपको मदद कर रही है, अरे बोलो यार। देखो बच्चों, एड्स का मतलब यहां पे होता है मदद होती है। अगर कभी कभी कोई चीजें हमारे बेयर एक्ट में ही लिख कर जिसको इंटरप्रिटेशन में फायदा होता है, हम कहेंगे
अरे बोलो ना। और जो चीजें बेयर एक्ट में भी नहीं फिर भी उपयोगी होती है। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, अगर मान लो कोई डिक्शनरी में डेफिनेशन दी है और इनकम टैक्स एक्ट में भी सैलरी की डेफिनेशन दी है, कौन सा सैलरी की डेफिनेशन यूज करोगे? तो पहले हम लोग इंटरनल एड्स करेंगे, और अगर वहां पे डेफिनेशन नहीं है तो हम लोग कहां जाएंगे? बताओ बच्चों, इंटरनल में एक एक चीज पूछता हूं मैं। लॉन्ग टाइटल याद करो, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल। क्या आपको लगता नहीं कोई भी एक्ट का जो लॉन्ग टाइटल होता है वो आपको इंटरप्रीट करने के लिए मदद कर सकता है? क्या उसका इस्तेमाल इंटरप्रिटेशन में होना चाहिए? प्रीएम्बल का मतलब है कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले एक्ट मत पढ़ो, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप, उसके गोल्स को, उसके पर्पस को जानना जरूरी है। पहले एक्ट के सेक्शन पढ़ेंगे या उसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे? क्या उससे भी आपको इंटरप्रिटेशन में समझ में आता है क्या? अगला सवाल आपसे पूछेंगे दोस्तों, हेडिंग टाइटल की बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 8, 9, 10 क्या है? 8 क्या होता है? डिविडेंड। 9 क्या होता है? और 10 क्या होता है? ऑडिट। आप बताओ 8 में अगर सेक्शन नंबर 8 में लिखा है कि डिविडेंड का है और सेक्शन नंबर 123 से 127 है और चैप्टर का नाम डिविडेंड है, तो हमें चैप्टर का नाम देख के समझते हैं आने वाले 5 सेक्शन में लोग डिविडेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अकाउंट्स का टाइटल पढ़ के हम लोग समझते हैं 128 से 138 में पूरा अकाउंटिंग पढ़ने वाले। सो डोंट यू थिंक टू मेक एन इंटरप्रिटेशन चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर मेक्स द डिफरेंस? यस और नो? अगला सवाल, मार्जिनल नोट्स कौन सी जगह पे यूज होता है और कौन सी जगह पे नहीं? आमतौर पर मार्जिनल नोट्स का इस्तेमाल इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं होता। सिर्फ जब भारत के संविधान जो बाबा अंबेडकर ने लिखा है, बोलो आगे, उसी का ही इंटरप्रिटेशन में मार्जिनल नोट का इस्तेमाल किया था अथवा? अगला सवाल, इलस्ट्रेशन। एक बात पूछू, कभी कोई चीज समझने के लिए इलस्ट्रेशन दिया होगा? लॉ कुछ अलग कह रहा है, इलस्ट्रेशन कुछ अलग कह रहा है, लॉ की मानेंगे। इलस्ट्रेशन की इज्जत लॉ से बढ़ के नहीं है। अगला सवाल, ओ माय गॉड, प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब क्या? प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड, ये क्वालिफिकेशन होता है सब्जेक्ट टू, राइट? एक बात करो, प्रोविजो को इग्नोर करना चाहिए, प्रोविजो को पढ़ना चाहिए? डू यू थिंक प्रोविजो इज इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट द लॉ? एक्सप्लेनेशन की बात करो ना। 151 में स्मॉल शेयर होल्डर की बात की थी। स्मॉल शेयर होल्डर भी अपने बिहाफ में एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेक्शन में तो लिख दिया स्मॉल शेयर होल्डर कर सकते हैं, पर यही पता नहीं कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं। इसलिए हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा स्मॉल शेयर होल्डर वो होते हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम होता है। बताओ क्या होता अगर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते तो? समझ? डू यू थिंक एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट द लॉ? अरे हाँ या ना? अरे हाउ इज द जोश एवरीबॉडी? देखो अगले 5 मिनट में चैप्टर खत्म होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट जवाब देंगे बच्चों। शेड्यूल को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ये शेड्यूल बनाते क्यों है? यू डोंट हैव टू राइट द सेम थिंग। देखो शेड्यूल 3 अकाउंट, शेड्यूल 7 CSR, शेड्यूल 5 रेम्यूनरेशन जितना देना होता है डायरेक्टर्स को उसके बाद, तो शेड्यूल 7 आपको मालूम है CSR, शेड्यूल 3 मालूम है कौन सा? बताओ ये बार बार अकाउंटिंग का फॉर्मेट लिखेंगे या सिर्फ बार बार शेड्यूल 3 लिखेंगे, ताकि सेम थिंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड अगेन एंड अगेन? तो डू यू थिंक वेर एवर यू वांट टू इंटरप्रेट द लॉ यू शुड रिस्पेक्ट शेड्यूल्स आल्सो? क्या शेड्यूल्स को लॉ रीड करते समय फायदा है या नहीं है? एक बात आज सभी को सूचना देना चाहूंगा, जितने भी हर एक के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, चाहे एड्स पढ़ा रहा हूं मैं, चाहे रूल्स पढ़ा रहा हूं, हर किसी के एग्जांपल दे। डू नॉट राइट दिस लॉ विदाउट एन व्हाट, विदाउट एन एग्जांपल, बिकॉज सामने जैसे अगर मान लीजिए ये एक्ट वैसा बहुत बोरिंग है iOS, पर आपको अभी समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट क्या रहा है? बिकॉज मैंने एग्जामिनेशन में उसको भी आपका पेपर रीड करने बहुत मजा आएगा। अगर आपने ये इसको लिखना बहुत मुश्किल है, एग्जाम्पल जरूर लिखना, हर किसी का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। अगला सवाल, ये दोस्तों डेफिनेशन किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा, जो लॉ में दी है जो बाहर दी है? मान लो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डेफिनेशन दी है, मेरे लॉ में डेफिनेशन दी है, किसको रीड मैंने करना चाहिए? और अगर लॉ में नहीं दी है तो बाहर की डेफिनेशन करना जरूरी है क्या? करूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बाहर की डेफिनेशन यूज करना, ऑक्सफोर्ड की विकिपीडिया करा तो करा, नहीं तो उस पर कोई भी कंपल्शन है। अगला सवाल पूछू क्या? एक बात पूछूंगा, दुनिया में सेकेंडरी क्या होते हैं? एक्सटर्नल एड्स होते हैं। हिस्टोरिकल एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जो बेयर एक्ट में नहीं है फिर भी उसका उपयोग इंटरप्रिटेशन में हो सकता है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल सेटिंग? जब भी कोई लॉ पढ़ते हो तो आपको उसकी पूर्व जानकारी पता होनी चाहिए। आखिर ये लॉ जिस समय आया था उस समय देश में 2013 का जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे, आपको पता होना चाहिए 2008, 9, 10, 11, 12 में इंडिया में क्या चल रहा था, जिसके चलते 2013 का कंपनीज एक्ट आया। तो बताओ बच्चों, आपको लॉ कब समझ में आएगा? उसकी हिस्ट्री पता है कि नहीं पता है? कभी भी कोई आप फोर्ट देखने जाते, फोर्ट देखने का मजा ही नहीं था अगर उसका इतिहास पता नहीं है। इस पर आपको इतिहास, वो यहाँ पे महाराजा बैठता था, यहाँ से लड़ाई होती थी, आपको अच्छा क्रिएट्स योर इंटरेस्ट, राइट? ओके, नंबर 2, एक बात पूछू क्या?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? कभी कभी दो चीजों को मिला के एक तैयार होता है। एग्जाम्पल, जीएसटी एक बच्चा है जिसके दो पापा है, एक वैट है, एक सर्विस टैक्स है। तो जब भी जीएसटी पढ़ेंगे तो इधर से सर्विस टैक्स, इधर से वैट, बना जीएसटी। तो इसलिए जीएसटी को पहले पढ़ेंगे या वैट सर्विस टैक्स को? इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट जीएसटी, यू शुड नो मोर अबाउट एनालॉगस। अलग अलग समय पर अलग अलग लॉ बने हैं। दोस्तों, कस्टमर को बचाने के लिए भारत में दो एक्ट, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दूसरी बात कॉम्पिटिशन एक्ट। मुझे बताओ क्या करना चाहिए आपको? एक का नॉलेज होना है दोनों का। जब तक देखो एक चीज होगी और अलग अलग भिन्न भिन्न लॉ होंगे तो सारे लॉ पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझेगा ही नहीं। अरे बोल रहे नहीं? डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में दो लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट एंड साइबर एक्ट। जब तक दोनों को नहीं पढ़ेगा आपको इंटरप्रिटेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, यूज ऑफ। अच्छा बताओ एक सवाल, फॉरेन डिसीजन, मान लो कि इंडिया में 26/11 का हादसा हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, ऐसे ही हादसा 9/11 में होता यूएसए में, उधर के कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? क्या वो कंपल्सरी भारतीय कोर्ट को फॉलो करना जरूरी है? कंपल्सरी है नहीं। यूज का रेफरेंस कर सकते हैं पर कंपल्सरी। रिपील्ड मतलब क्या? कभी अभी आप देखते हो अभी इसका रेट, जो राइस का रेट 30 रुपए से नहीं, अब 30 रुपए का 25 रुपए हो गया। मुझे बताओ जो डिलीटेड चीजें क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि पता होना चाहिए कि अगर जब डिलीटेड पढ़ते हो ना तो नए का पढ़ने का मजा है। अगर मान लो अब 1 लाख की फाइन और पहले कट की 500 रुपए, तो आपको समझ, अच्छा लॉ में बहुत टेंशन बढ़ रही, 500 रुपए हटा के 1 लाख कर दिया, इसका मतलब क्या? अब गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत सीरियसली ले लिया है। अगला सवाल, और यूसेज का मतलब क्या? कस्टम होता है। क्या बोलता है? मतलब क्या? जवाब दो जल्दी से। सप्तपदी वाला केस, जब भी आपको लगा कि कोई शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो ये देखना चाहिए कि ट्रेडिशन से इसका मतलब। एग्जाम्पल सप्तपदी। अगला सवाल डिक्शनरी डेफिनेशन, मैंने बोल दिया था। ये क्या, इसका मतलब क्या है बच्चों? अर्लियर एक्ट। ये बहुत ही वाहियात है, मैंने आपको तभी बोला था। अगर मान लो कोई चीजें एज इट इज कॉपी हुई 1956 से 2013 में, कुछ एक्सेप्शंस कॉपी नहीं हुए और आपको लगता है नए में वो एक्सेप्शन नहीं है पर उसके बाद लॉ हो ही नहीं सकता, तो ऐसे समय पे वो एक्सेप्शन नहीं भी है तभी वैसे में फील करना चाहिए कि वो है। ये क्या पढ़ रहा हूं मैं? प्राइमरी क्या है? इंटरनल या एक्सटर्नल पढ़ रहा हूं? आप बताओ इंटरनल और एक्सटर्नल में कौन सा? बेयर एक्ट में ही दिया होता है। अब मैं इसमें से कोई भी 2-4 पुस्तक जवाब देंगे? अरे बोलो यार भाई, कौन सा बताओ? इंटरनल डेफिनेशन, एक्सटर्नल कौन सा फॉलो करना कंपलसरी है? आप बता दो, प्रीएम्बल को पहले पढ़े या लॉ को पहले पढ़े? एक बात पूछो, अगर मान लो कोई एग्जाम्पल दिया है, कोई इलस्ट्रेशन दिया है, वो अलग बोल रहा है, लॉ अलग बोल रहा था, किसको फॉलो कर रहा है? लॉ को फॉलो करना जरूरी है। मार्जिनल नोट्स को कहां पे यूज करना बहुत कंपलसरी है? कॉन्स्टिट्यूशन में, अन्यथा मार्जिनल नोट्स का इज्जत। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, टाइटल चैप्टर डिविडेंड का, चैप्टर नंबर 8 का नाम डिविडेंड है, क्या चैप्टर का नाम भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूजफुल होता है? हाँ या ना? अगला सवाल, शेड्यूल को इंटरप्रिटेशन में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मैं शेड्यूल को इग्नोर करूंगा या यूज करूंगा? अगला सवाल, मैं बताओ लॉ पहले पढ़ूंगा, प्रीएम्बल पहले पढ़ूंगा? प्रोविजो को पढ़ना इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि नहीं है? आप बताएंगे इतिहास को पहले पढ़े या लॉ को पहले पढ़े? अगला सवाल, यार कंसोलिडेशन का एग्जांपल दो मिला के एक होगा, जैसे कि वैट, जीएसटी पहले पढ़ेंगे या फिर वैट और सर्विस टैक्स? एनालॉगस मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग लॉ आए होंगे, जैसे कि कस्टमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आया और आपका क्या आया? कंपटीशन भी आया। तो एक को पढ़ेंगे, दोनों को भी पढ़ेंगे। अगला सवाल, फॉरेन डिसीजन को यूज करना कंपलसरी क्या नहीं है? रिपील्ड को पढ़ना जरूरी है ताकि आपको नया समझ में नहीं आएगा। अगला सवाल, यूसेज का मतलब क्या है? यूसेज मतलब क्या? कैसा यूज होते आ रहा है? तो हमेशा ये अग्निकुंड ही माना जा रहा है, अग्नि को। समझ में आया? आप बताओ, आज ही हमने क्या डिड्स को यूज करने के 6 रूल बताओ, कम से कम 6। एक, अगर मेरे पास ये 2 अलग अलग डीड है, इसमें जब भी मैं पढ़ूंगा सबसे पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान पहले या डीड पहले? दूसरी बात, इसमें कोई एक शब्द लिखा है, इसमें भी लिखा है, क्या दोनों का मीनिंग एक जैसा होना चाहिए, अलग हो सकता है? तीसरी बात, आप जवाब देंगे अगर इसमें फर्स्ट पार्टी एसपीसी है तो पूरे एग्रीमेंट में फर्स्ट पार्टी एसपीसी ही माना जाएगा। चौथी बात, अगर मान लो एक शब्द का मतलब फाइन का अलग होता है तो फाइन का वर्ड देखना चाहिए उस पैराग्राफ में कहां है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। एक चीज मान लो 39 क्लॉज एक जैसे दिख रहे हैं और एक क्लॉज एक जैसे दिख रहा है, तो वो 39 की इज्जत ज्यादा है कि एक की इज्जत ज्यादा है? तो जो 40th पॉइंट उसको इग्नोर कर दो, अगर वो भलता ही अलग मीनिंग, और इसमें भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है। अगर मान लो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहां पे लॉक इन पीरियड लिखा है 1 साल का, अरे बोलो ना, और एग्रीमेंट लिखा है 3 साल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 साल तो यूज करना ही पड़ेगा झक मार के, और जरूरत पड़े तो आप 3 साल तक भी जा सकते हो। इसका उसका क्या किया आपने? जब 2 क्लॉजेस अलग अलग मीनिंग बोलते हैं तो आप उसको हार्मोनियस करना है। समझ में आ रहा है? और एक बताओ बच्चों, विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या है? दोस्तों प्रेजुडिस का मतलब यह होता है कि हानि पहुंचाना। विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब कोई सेक्शन बोल रहा है विदाउट प्रेजुडिस, जो प्रीवियस सेक्शन, इसका मतलब क्या? पिछले वाले सेक्शन को हानि पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो? मतलब वो भी है
और मैं भी हूं। अरे वो भी है। एक बात पूछू क्या, आप बताओ ये क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? मैं पार्टी आऊंगा सब्जेक्ट टू पापास अप्रूवल। मैं फॉरेन एक्सचेंज कितना भी ले सकता हूं सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल। इसका मतलब क्या है? वो कंडीशन है, वो होगा तो। अगला सवाल बताएंगे नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है? कौन जवाब देगा नॉट विथ स्टैंडिंग और विदाउट प्रेजुडिस में? कौन सा बोल रहा है बाढ़ में जाए? मैं बाकी सब बाढ़ में। नॉट विथ स्टैंड मतलब नॉट विथ स्टैंड, मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं। नॉट विथ, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। और विदाउट प्रेजुडिस मतलब क्या? वो भी है मैं भी हूं, वो भी है मैं भी। इसको, इस iOS को हमने पूरी तरह से रिवाइज किया। बताएंगे पूरा चैप्टर कौन सी कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? एक रूल, एड्स, डिड के और लास्ट में 3 नाम, सब्जेक्ट टू, नॉट विथ स्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडिस। बताएंगे रूल कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी, एड्स, इंटरनल। प्राइमरी के 6 बच्चे, एक लिटरल, रीजनेबल, हार्मोनियस, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल, जनरल। और इसका तो है ले गई, बेगम को ले गए सॉस में, तो बेगम आ गए, ले गए बेगम मतलब लेगम, ले गए सॉस में मतलब नौसीचूर सॉसेस। याद आ रहा है? आप बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा बेयर एक्ट में होता है और कौन सा नहीं होता है? आप बताएंगे। हमने डीड के भी 5 पॉइंट देख लिए और इसके बाद में नॉट विथ स्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडिस और सब्जेक्ट। बताओ नॉट विथ स्टैंडिंग और विदाउट प्रेजुडिस में कौन सा बोलता है बाकी सब भंगार है? कौन सा बोलता है वो भी है मैं भी हूं? ओके, एक बार ताली बजाओ सभी लोग। क्या बात है, सुपर। माय गॉड।